प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है C205 और इसमें जो यूनिट है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। सबसे पहले इसमें आता है वाटर बाउंड मैकाडम रोड्स। द रोड हुज वेयरिंग कोर्स कंसिस्ट ऑफ क्लीन क्रश एग्रीगेट mechanically interlocked by rolling and bound together with filler material and water laid on a well compacted base course is called water bound macadam road। आपको फिगर में नज़र आ रहा है क्रस्ट एग्रीगेट्स नज़र आ रहे हैं और इनको मैकेनिकली इंटरलॉक किया जाता है, इस तरह बिछाया जाता है कि इंटरलॉकिंग हो जाती है और फिलर मटेरियल पानी की मदद से फिर इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। These are the materials required for WBM construction road: coarse aggregate, screening, binding material. Coarse aggregate, unlike other coarse aggregate, it consists of mixture of hard and durable crushed aggregate and broken stones. The aggregates used for each layer of WBM road construction should be properly graded. The coarse aggregate used in the construction of WBM road should hold the following properties: it should be hard and durable. The coarse aggregate should be free from flaky and elongated particle. The coarse aggregate should be in acceptable shape and size. Screenings, the material which is used up to fill up the excess void present in compacted layer of coarse aggregate is called screening. Binding material, binding material which is going to be used for the construction of WBM road should be properly approved by engineer and it should have plasticity index value less than 6. Generally, the binding materials are not required if screening used for construction of WBM road is muram or gravel, as they have crushable properties. Salient features of WBM roads: low cost, thickness इसकी 8 से 30 सेंटीमीटर होती है, कैम्बर इसका 2.5 से 3% होता है, surface is better than earthen road but rough as compared to bituminous or concrete road, can be used as base course फॉर बिटुमिनस और कंक्रीट रोड। इनके लिए बेस कोर्स का इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद आता है बिटुमिन रोड। एस्फल्ट बिटुमिन इज ए बाइंडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रिफाइंड क्रूड ऑयल। इट इज़ यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस, रीयूजेबल, नॉन टॉक्सिक एंड ए स्ट्रॉन्ग बाइंडर। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। दिस इज़ नॉन टॉक्सिक, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये। Bitumen is a binding agent produced from petroleum. Bitumen is known for being strongly adhesive and resistant to damage from water and oil spills. ये इसमें आपको राइट साइड में जो फिगर है वहाँ पर नज़र आ रहा है सील कोट, सरफेस कोर्स, बाइंडर कोर्स, लेवलिंग कोर्स एंड बेस कोर्स। इसके बाद आती है बिटुमिन रोड्स। डिफरेंट टाइप सरफेस बनाए जाते हैं इसमें, जैसे एक तो होता है प्राइम कोट, फिगर में आपको नज़र आ रहा है प्राइम कोट, 2 लेयर्स नज़र आ रही है उसकी। दिस इज ए सिंगल कोट ऑफ लो विस्कोसिटी बिटुमिनस बाइंडर। दिस कोट इज अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग अनट्रीटेड परवियस लेयर लाइक WBM. द मेन पर्पज इज टू इम्प्रूव द एडहेजन बिटवीन बेस एंड बिटुमिनस सरफेस। फंक्शंस: to bind the dust and loose particle together to form hard and rough surface. It provides temporary seal to prevent the surface water from penetrating through surface. Tack coat: this is single coat of low viscosity bituminous binder applied to the existing treated impervious layer such as bitumen or cement concrete base. This coat is applied between treated base and bituminous surface. Functions: it is provided to improve adequate bond between existing impervious base and wearing surface.
आपको इसमें नज़र आ रहा है प्राइम कोट। उसके बाद आता है इसमें सील कोट। बिटुमिन रोड्स का पार्ट है। कितनी तरह की कोटिंग होती है उसमें, वन ऑफ इज सील कोट। सील कोट इज फाइनल कोट ऑफ बिटुमिनस मटेरियल दैट इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ सरफेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर थ्रू द वॉइड्स। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके? टू प्रोवाइड वाटर टाइट सरफेस, इट इम्प्रूव द विजिबिलिटी एट नाइट एंड डेवलप्स स्किड रेजिस्टेंट टेक्सचर, टू इम्प्रूव द वेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग रोड सरफेस। उसके बाद आता सरफेस ड्रेसिंग। इट इज़ द प्रोसेस इन विच 2 or more coats of bituminous material are applied to prepared base. This coat consists of bituminous binders sprayed on which chipped aggregates are properly rolled. Functions क्या क्या हैं इसके? It prevents the removal of binding material and prevents the damage of road due to waterproofing effects. Roads can be easily cleaned and washed as it reduces dust nuisance. Smooth surface of the road reduces the wear and tear of tires. आपको इसमें नज़र आ रहा है टॉप पर सील कोट, उसके बाद सरफेस कोर्स, बाइंडर कोर्स, लेवलिंग कोर्स एंड देन बेस कोर्स। ये बड़े विजिबल हैं, ये जो आपके सामने एक फिगर नज़र आ रहा है। उसके बाद आते हैं सीमेंट कंक्रीट रोड्स। The roads having their wearing surface consisting of cement concrete, plain or reinforced, are known as cement concrete roads or concrete roads. Cement concrete roads are superior to most other type of roads, including bituminous roads. These roads are types of rigid pavements and remain in serviceable condition under all weather conditions. ये बहुत important है, किसी भी तरह का weather हो ये serviceable रहती है। Thus, concrete roads are also considered as all-weather roads. Due to excellent riding surface, pleasing appearance, and long life under most severe traffic conditions, cement concrete roads are much preferred. Cement concrete roads are superior to most other types of roads, including bituminous roads. These roads are very popular as high-cost pavements in developed countries. एडवांटेज क्या क्या हैं सीमेंट कंक्रीट रोड्स के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरी तरह की जो रोड्स आपने पढ़ी हैं, एक रोड हमने इसमें नहीं पढ़ा जो कि अर्दन रोड, जो गांवों में आप देखते हैं मिट्टी से बनाई जाती है, उसके बाद की रोड्स को हमने देख ही लिया। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है जब हम एडवांटेज की बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट रोड्स की। इसमें है द कंक्रीट रोड्स हैव ए लॉन्ग लाइफ, इनकी जो लाइफ है बहुत लंबी होती है। दे आर क्वाइट ड्यूरेबल एंड प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड बाई वेदरिंग एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और मौसम का इन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है दे प्रोवाइड एन एक्सेलेंट राइडिंग सरफेस अंडर ऑल वेदर कंडीशंस। किसी भी तरह के वेदर कंडीशन हो, एक अच्छा राइडिंग सरफेस ही देती है। दे प्रोवाइड ऑल इम्परवियस, डस्टलेस एंड सैनिटरी सरफेस। इम्परवियस मतलब जिसमें अंदर पानी नहीं जा सके, डस्टलेस मतलब क्लीन, और सैनिटरी आराम से बरसात का पानी यदि प्रॉपर आपने इस पर कैम्बर मतलब सेंट्रल लाइन से साइड्स की तरफ जो स्लोप देते हैं हम, वो दिया है तो बरसात का पानी इस पर नहीं रुकेगा, आसानी से बह जाता है। नो कोरुगेशंस आर डेवलप्ड इन सीमेंट कंक्रीट रोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिटुमिन रोड में देखा होगा या अर्दन रोड में देखा होगा या WBM रोड में देखा होगा कि जब हैवी व्हीकल्स उस पर गुजरते हैं तो जगह जगह से सड़कें दब जाती हैं, जहाँ दबती है उसके साइड में उठ जाती हैं, उनको बोलते हैं कोरुगेशंस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट कंक्रीट रोड का जो सरफेस होता है वो एक्चुअली बहुत हार्ड होता है, तो उस हार्ड सरफेस के कारण ये कोरुगेशंस आपको वहाँ नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद है दे कैन बी लेड ऑन एनी सब ग्रेड। कोई भी सब ग्रेड पे इसको आसानी से हम बिछा सकते हैं, बना सकते हैं। दे प्रोवाइड गुड विजिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक ड्यूरिंग नाइट आवर्स।
नाइट आवर्स में विजिबिलिटी इन रोड्स पर अच्छी होती है। एक तो इनका कलर ब्लैक नहीं होता है। दे आर प्रैक्टिकली नॉन स्लिपरी एंड ऑफर लेस ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। ये नॉन स्लिपरी होती हैं और स्मूथ सरफेस होता है, इसलिए ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे व्हीकल्स इस पे गुजरेंगे उस पे से टायर्स जो होंगे उनका वियर और टीयर बहुत कम होगा। वियर टीयर कम होगा तो हमारी जो ड्राइविंग वो स्मूथ होगी। इसके अलावा टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी इस पर गुजरेंगे उनका एवरेज अच्छा मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। उस रेजिस्टेंस को कोप अप करने के लिए हमें कम पावर का यूज़ करना पड़ेगा, तो नेचुरली इकोनॉमिक पड़ेगा। कुल मिला के एक सही शब्दों में कहेंगे तो इकोनॉमिकली बेटर साइड में रहेंगे। देयर लोड कैरिंग कैपेसिटी इज मोर। बड़े आसानी से हैवी ट्रैफिक इस पे से गुजर सकता है, क्योंकि इनका सरफेस बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है। देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो। इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लंबे समय तक चलती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, हार्ड सरफेस मिलता है और मेंटेनेंस कॉस्ट की बहुत कम है। सीमेंट कंक्रीट रोड्स को हम जनरली देखते हैं, यहाँ पर बहुत ऐसा कम होता है कि टूट गई हैं, इनको रिपेयर किया जा रहा है। बाकी सड़कों में ये बड़ा कॉमन फीचर है। इसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड्स। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, द इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लागत बहुत ज़्यादा है इन रोड्स की एज कम्पेयरली यदि आप कंपेयर करें अर्दन रोड से, WBM रोड से या बिटुमिन रोड से। दे रिक्वायर स्किल्ड सुपरविजन एंड लेबर फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। यहाँ स्किल्ड सुपरविजन चाहिए और लेबर भी ऐसी चाहिए जो पारंगत हो इस काम को करने में। उसके बाद है दे आर लायबल टू क्रैक एंड वार्प ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। यदि टेम्परेचर वेरी बहुत ज़्यादा करता है तो इसमें क्रैक्स और वार्प्स आने के चांसेस रहते हैं। दे बिकम नॉइजी अंडर आयरन टायर ट्रैफिक। यदि ट्रैफिक ऐसा है जिसमें आयरन टायर्स हैं तो वहाँ पर एक नॉइजी सीन क्रिएट हो सकता है, आवाज़ ज़्यादा होगी जब व्हीकल चलेंगे। दे आर लेस रेजिलियंट देन बिटुमिन और WBM रोड्स। दे में कॉज ग्लेयर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जब सनलाइट इन पे गिरती है तो एक ग्लेयर या एक चमक ड्राइवर की आंखों में पड़ सकती है, जो अदरवाइज दूसरी रोड्स पे ऐसा नहीं होता है। दे कैन नॉट बी ओपन्ड ड्यू टू ट्रैफिक शॉर्टली आफ्टर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद इन रोड्स को ऑपरेट नहीं किया सकता या चालू नहीं किया सकता। कारण है क्योंकि इन रोड्स की पहले स्ट्रेंथनिंग होना ज़रूरी है। जब तक वो स्ट्रेंथ इनमें नहीं आएगी तब तक इनको चालू नहीं किया जा सकता। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड और रिपेयर अंडरग्राउंड पाइप्स बिलो सीमेंट कंक्रीट रोड्स। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि जब रिपेयर वाली बात आती है तो मान लीजिए सड़क के नीचे से अंडरग्राउंड पाइप जा रहे हैं, जब रिपेयर करेंगे तो सड़क को तोड़ना पड़ेगा और वो तोड़ना उतना आसान नहीं, क्योंकि ये बहुत टफ सरफेस होता है।
स्ट्रेंथिंग के बाद बहुत टफ हो जाता है। दूसरी बात है कि जब इसको तोड़कर वापस सड़क को बनाया जाएगा तो प्रॉपरली वो जॉइंट्स नहीं बन पाते ओरिजिनल की शेप में। तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ वेरी टफ टू प्रोवाइड और रिपेयर अंडरग्राउंड पाइप्स बिलो सीमेंट कंक्रीट।